Yesterday, write down equation of an isothermal process. Equation of an isothermal process. We know PV is equal to RT. This is equation number 1. We know PV is equal to RT. This is equation number 1. For isothermal process, yes, we take write down. In isothermal process, temperature remains constant. Temperature remains constant. Therefore, equation 1 becomes PV is equal to constant. PV is equal to constant because R, capital R and capital T are constants. Because capital R and capital T are constants, therefore PV is equal to constant. Therefore, अगर कोई वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होता है, वॉल्यूम तो चेंज हो सकता है, ओके, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो प्रेशर भी चेंज होगा, ओके. Therefore, P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant, or P1 V1 is equal to P2 V2 is equal to constant is equal to P3 V3 is equal to P4 V4, okay. So therefore, this is the equation of an isothermal process, that is P1 V1 is equal to P2 V2. P1 V1 is equal to P2 V2. Yes, okay, write down, very important. Yes, जो बच्चों ने कर लिया था ये ना, मैंने तो एग्जाम में आपसे ये पूछा था भाई, जो क्या बोलते हैं इसको, प्रोसेस वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस. तो बेटे इसके लिए पहले बनेगा आपका सिस्टम, पिस्टन वाला सिस्टम. यस, here is the cylinder, here is the final state of the piston, here that it is the initial state of the piston, here is final and here is what initial state. Let it is volume V1, here is volume V2, okay. Here is let pressure P2 and here is let pressure P1, okay. And cross sectional area is let A, और जो डिस्प्लेसमेंट हुई इस पिस्टन की, लेट दैट इज इक्वल टू dx, ओके. we know amount of work done is equal to force into displacement. We know amount of work done is equal to force into displacement, or it is equal to pressure into area into dx. Pressure into area into what? dx, or it is equal to pdv, okay, or dw is equal to pdv. This is equation number 1. This is equation number 1. Yes beta. Therefore, total amount of work done, W is equal to integration from V1 to V2 of dW. बेटा visible है आपको बोर्ड? Yes friends. Yes sir. Therefore W is equal to integration from V1 to V2 of dW, or it is equal to V1 to V2 of PdV. This is equation number 2. This is equation number 2. We know for 1 mole of a gas, write down beta, we know for 1 mole of a gas, ये लिख दो, PV is equal to RT. PV is equal to RT, or P is equal to RT upon V, or P is equal to RT upon V. Yes, therefore from equation 2 we have
From equation 2 we have amount of work done is equal to integration v1 to v2, okay, of pdv is equal to integration from v1 to v2. अब बेटे p की जगह क्या आ जाएगा, बोलो शाबाश। यस, RT upon V. वेरी गुड, RT अपॉन V इंटू dv। अब ये जो RT है दोनों कांस्टेंट है ना, यस सर, तो ये Yes. कहाँ जाएंगे, RT और ये दोनों कहाँ जाएंगे, बाहर बाहर आ जाएंगे। हाँ यस, दिमाग से नहीं, इंटीग्रेशन से। ओके, सो देयरफॉर RT इज इक्वल, सॉरी, इनटू V1 to V2 of 1 upon V into dv, 1 upon V into dv। ओके बेटा जी, यस सर, Yes, हाँ sir. यस, आगे खोटे, और इट इज इक्वल टू RT। अब बेटे जो इंटीग्रेशन होती है ना 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन जो होती है वो कितनी होती है, log ऑफ x होती है, क्या होती है, log ऑफ Log of x। x. ओके, तो 1 अपॉन v की क्या होगी, log v। ओके, सो ये बन जाएगा बेटे हमारे पास क्या, therefore it is equal to natural logarithm of v, ओके, फ्रॉम v1 to v2। ओके, अब क्या अगला स्टेप क्या होगा बेटा जी, अब v की जगह हम रखेंगे अपर लिमिट v2 माइनस लोअर लिमिट v1। ओके, और RT इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ v2 माइनस log ऑफ नेचुरल लॉगरिथम ऑफ v1। ओके बेटा, यस सर, यस, Yes, sir. अब दोनों में से log बार कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, बोलो साहस, RT इंटू नेचुरल लॉग ऑफ v2 माइनस, नहीं लॉग को बेटे बाहर लेंगे तो फिर हमारे पास ये आ जाएगा क्या, बोलो साहस, log ऑफ v2 अपॉन v1। RT नेचुरल लॉग जब हम कॉमन बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है, v2 अपॉन v1, ऐसा नहीं रहेगा v1 माइनस v2, नहीं लॉग में नहीं चलता है, इसको फॉर्मूला मैथ में किया आपने, Yes, sir. हाँ यस, ओके, और इट इज इक्वल टू, अब बेटे जब लॉग बेस, लॉग नेचुरल लॉग तुमको जब हम लॉग ऑफ बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं तो ये वैल्यू बन जाती है 2.303। ओके, RT इंटू लॉग ऑफ बेस 10 इंटू v2 अपॉन v1। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3. ओके, हाँ जी, अब देखो बेटे, तो इक्वेशन नंबर 3 आ गई हमारे पास, 2.303 RT इंटू नेचुरल लॉगरिथम ऑफ बेस 10 ऑफ v2 अपॉन v1। ये जो ना 2.303 है, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं इसको, है ना, Yes, sir. केमिस्ट्री में भी आता है ना, कौन से Yes, sir. चैप्टर में आता है, Yes, sir. जो इलेक्ट्रोलिसिस वाला उसमें आता है ना, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, यस सर, पॉजिटिव हाफ सेल है ना, यस सर, हाइड्रोजन सेल में नहीं आता है। Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, यस, सो बेटे देखो, वी नो P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, है ना, यस सर, P1 B1 इज इक्वल टू P2 B2, देयरफॉर यही से V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, है ना, यही आ गया, P1 Yes, sir. B1 इज इक्वल टू P2 B2, तो B2 B1 को इधर ले जाओ तो B2 अपॉन B1, P2 नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो P2 अपॉन B1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। ओके, यस सर, देयरफॉर अब ये जो इक्वेशन नंबर 3 में V2 अपॉन V1 है, वैसे तो यही तक करना आपने, ठीक है, बट अगर आपको पूछे फाइंड द वर्क डन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, तो V2 अपॉन V1 की जगह क्या लिख देंगे आप, बोलो साहस,
P1 अपॉन P1 upon P2. P2, हाँ P2. इसके नीचे लिखो क्वेश्चन 3 के बाद लिख लो, we know P1 V1 is equal to P2 P2. Yes, write down. We know P1 V1 is equal to P2 V2. Therefore, V2 upon V1 is equal to P1 upon P2. P1 upon P2. Okay. Therefore, equation 3 becomes, क्या बन जाएगी बेटा? ओके बोलो भी और लिखो साथ में. यस, W इज इक्वल टू, W के साथ बेटे इसके बॉटम में लिख दो ISO. ISO का मतलब क्या हो गया? Work done in isothermal process. Therefore, work done during isothermal exchange, DISO is equal to 2.303 RT log of base 10 P1 upon P2. P2. ब्रैकेट में लिखना P1 अपॉन P2. ओके बेटा, मैं इसको रिवाइज करूं या कर लेंगे आप द्वारा? कर लेंगे सर। लेंगे सर. रिवाइज कर देता हूं मैं ना, देखो 1 मिनट में रिवाइज कर लेता हूं. यह सबसे पहले तो आएगा, ठीक है, आपको जब जैसे ही आपको एक्सो आएगा ना, इसका फॉर्मूला जो है इसका, सॉरी, यस, राइट डाउन. इक्वेशन ऑफ एन adiabatic process. Equation of an adiabatic process. Equation of an adiabatic process. Yes, beta, write down. We know dq is equal to du plus pdv. Okay. We know dq is equal to pdv, sorry, du plus pdv. Okay, write down. In adiabatic process, dq is equal to 0. Therefore, the equation of an adiabatic process is given by, write down beta, is given by PV raised to power gamma. देखो बेटा इधर, PV raised to power gamma is equal to constant. PV raised to power gamma is equal to constant. ओके, ये तो थी adiabatic जो है इक्वेशन ऑफ adiabatic प्रोसेस की इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम. ओके, राइट डाउन. इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, equation becomes TV into gamma minus 1. TV into gamma minus 1 is equal to constant. TV into gamma minus 1, where gamma is equal to, gamma जो होता है that is the what? That is the ratio of Cp upon Cv. Okay, gamma is equal to Cp upon Cv. Yes, beta ji, just work done in an adiabatic process. Yes, write down. Consider 1 mole of an ideal gas. Consider 1 mole of an ideal gas enclosed in a cylinder. Enclosed in a cylinder having insulating walls, and bottom. If capital P and capital V are the pressure and volume of gas, if capital P and capital V are the pressure and volume of the gas,
as there is no heat, as or simply the way, or as in adiabatic process dq is equal to 0. In adiabatic process dq is equal to 0. In adiabatic process dq is equal to what? 0. Therefore 0 is equal to du plus pdv. du is equal to what? 0 is equal to du plus pdv. Okay, or it is equal to du plus dw. 0 is equal to what? du plus dw, or dw is equal to minus du. dw minus du. We know du is equal to, we know du is equal to cv dt. du is equal to, अभी क्या हमने cv into dt. Therefore dw is equal to minus cv into dt. Therefore dw is equal to minus cv into dt. Write down total amount of work done. Total amount of work done in adiabatic expansion is given by d, sorry, w adi. adi लगाना पड़ेगा w के साथ ना, इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम t1 to t2 of dw is equal to minus integration from t1 to t2 of cv into dt, of cv into dt. और cv जो बेटे क्या होता है? कांस्टेंट है ना. so therefore it is equal to minus cv from t1 to t2 of dt. cv क्या होता है? कांस्टेंट. स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज कांस्टेंट, so therefore it can be taken out from the integration, or it is equal to minus cv. और इंटीग्रेशन जो होगी बेटे वो कितनी हो जाएगी? बोलो शाबाश. इसकी हो जाएगी इंटीग्रेशन t, ओके, फ्रॉम लोअर लिमिट t1 to t2, और इट इज इक्वल टू माइनस cv into t2 minus t1, minus cv into t2 minus t1. ओके बेटा. और it is equal to cv into t1 minus t2. ओके, अगर हम माइनस को अंदर कर दे मल्टीप्लाई तो वो आ जाएगा कितना? cv into t1 minus t2. ओके, हाँ यस बेटा. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2. yes बेटे, we know cp minus cv is equal to r. we know cp minus cv is equal to r, or dividing each term with cv. ओके, तो cp अपॉन cv क्या होता है बेटे? बोलो शाबाश. गामा. तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना? बोलो शाबाश. गामा माइनस 1 इज इक्वल टू r अपॉन cv. r अपॉन cv, और cv इज इक्वल टू, और r, सॉरी r नहीं, cv इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? r अपॉन गामा माइनस, बोलो कितना आ जाएगा? cv इज गामा इक्वल टू माइनस 1. Gamma minus 1. गामा माइनस 1. therefore equation 2 becomes, work done during adiabatic process is equal to r upon gamma minus 1
into T1 minus T2. Work during adiabatic process is equal to R upon gamma minus 1. Okay बेटा? Yes, write down बेटा. इसके आगे लिखो. We know PV is equal to RT. We write down PV is equal to what? RT. PV is equal to what? RT, or P1 V1 is equal to RT1. Okay, and P2 V2 is equal to RT2. Okay beta? Yes, sir. Yes. Let this is equation number 3 and this one is 4. Subtracting 3 from 4. Subtracting 3 from 4. क्या जाएगा आपके पास? बोलो शाबाश. P2 बोलो बेटा, बोलो. P2 V2 minus P1 V1. Please. P2 V2 minus P1 V1 is equals to subtracting RT2 minus RT1. subtracting 3 from 4. 4 from 3. Yes, sir. Subtracting 4 from 3, we get P1 V1 minus P2 V2 is equal to R कॉमन आ जाएगा into T1 minus T2. Okay? Okay? Yes, sir. R into Yes, sir. T1 minus T2. Okay बेटा जी? So Yes, sir. therefore equation 3 जो है that can be written as, therefore equation 3 नहीं, equation 3 है बेटा, ये equation 3 है. ये जो 3 है इसको 4 लिखो और जो 4 है उसको 5 लिखो ना. तो इक्वेशन 3 है वर्क आइडिया वाली. तो therefore वर्क आइडियाबैटिक प्रोसेस में इक्वल टू R into T1 minus T2 किसके बराबर हो गया? बोलो बेटा. R into T1 minus T2 किसके बराबर हो गया? P1 V1 minus P2 V2. P1 V1 minus P2 VT के बराबर हो गया. तो therefore ये आ गया हमारे पास 1 upon gamma minus 1 into P1 V1 minus P2 V2. Okay? Okay? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी बेटा, yes. So this is the expression for the amount of work done during what? During Adiabatic. adiabatic process of first law of thermodynamics. Limitations of first law of thermodynamics. Yes, number 1. It does not tell us under which conditions heat will be converted into mechanical energy. Heat will be converted into mechanical energy. Number 2, it cannot tell us why heat cannot flow from cold body to hot body. From cold body to hot body. Okay. Number 3, it gives no indication. It gives no indication why whole of heat energy
why whole of heat energy cannot be converted into mechanical energy? Or number 4, it does not indicate the extent to which to which heat energy can be converted into mechanical energy. अब देखो ना, डिफरेंट डिफरेंट जो इंजन होते हैं ना, जैसे अब आपका पहले होता था स्टीम इंजन, उसकी एफिशिएंसी होती थी 12 से 14%। और उसके बाद पेट्रोल इंजन है, ठीक है, पेट्रोल इंजन की एफिशिएंसी होती है अप टू 25% ओनली। उसके बाद होता है डीजल इंजन की एफिशिएंसी हो जाती है अप टू 40%। ओके। उसके बाद आता है जैसे गैसोलीन वगैरह, इसकी एफिशिएंसी थोड़ी और ज्यादा होती है। लेकिन क्या एफिशिएंसी ज्यादा होने से ना कार्बन का जो क्या होता है आउटपुट होती है कार्बन प्रोडक्ट्स की, वो भी ज्यादा होती है ना अनबर्न कार्बन डाइऑक्साइड की। तो ये बता नहीं पाता व्यक्ति किस एक्सटेंट तक हम हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर हमें कोई ऐसा इंजन मिल जाए, अब हमारे पास एक ट्रांसफार्मर होता है। आपने ट्रांसफार्मर देखा बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ट्रांसफार्मर वो फिल्म नहीं, नहीं सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वाला ट्रांसफार्मर। ओके। तो अगर हम बेटे ट्रांसफार्मर को अगर बहुत अच्छी तरह बनाएं, बहुत अच्छी तरह, मतलब पूरा, मतलब अपना ध्यान लगा के, है तो प्रोसेस ही, मतलब बताया था ना मैंने आपको एक बार भाई, चाइनीज मेड होता है, एक एप्पल का होता है प्रोडक्ट, है ना, बताया था? यस सर। क्या बताया था, बताओ ना। तो बेटे देखो ना, अब जैसे मान लो 2 फोन है, ओके, एक मेरे पास है, एक आपके पास है। मेरे वाला जो चाइनीज फोन है, ठीक है, 2000 रुपए का या 10,000 रुपए का, आपके पास 1.5 लाख का है। ओके। तो अगर मैं आपको फोन करूंगा तो आपके फोन में मेरी आवाज आ जाएगी, है ना? तो बोला करो, यस सर। जवाब तो दो बेटा। अब अगर सपोज करो, अगर हम दोनों फोन को सुने पहले 5 मिनट का ना कोई भी सॉन्ग, ओके, जनगण मन है या जो भी गाना, ओके, उसको अगर हम 5 मिनट मेरे वाले फोन पे सुने और उसी सॉन्ग को 5 मिनट एप्पल वाले फोन में सुने, तो क्वालिटी किसमें ज्यादा अच्छी होगी? एप्पल वाले में। एप्पल वाले में। समझ गया ना? देखो काम तो दोनों कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ क्वालिटी किसकी, तो समझ गया ना आप? 1.5 लाख का की है, क्योंकि उसमें तो मेरे दिमाग लगाया है ना। यस सर। आप कह लो दिमाग लगाया है, दिमाग उसने भी लगाया और चाइनीज वाले ने भी लगाया है, लेकिन उसका जो रॉ मटेरियल है वो घटिया होगा। ओके। यस सर। हाँ, तो वैसे होता है बेटा, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है। अब कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, प्रीपेचुअल मोशन मशीन, है ना? यस सर। तो जो आपका तीसरा है ना, तीसरा जो है, ठीक है, तीसरा जो लिमिटेशन है, यही बोल रहा है भाई। अगर, अच्छा मैं पहले सुन लो, पहले मैं बता रहा था, जो ट्रांसफार्मर होता है ना दुनिया भर में सबसे एफिशिएंट यही है ना। ये अप टू 96% एनर्जी को ट्रांसफर कर देता है, कन्वर्ट कर देता है ना, वन फॉर्म टू अनदर को, यूजफुल में। और जो इंजन है जिनकी मैं बात कर रहा था, वो जो जैसे पेट्रोल इंजन था या स्टीम इंजन था 12% टू 14%, और आपका पेट्रोल इंजन है 22 टू 25%, डीजल इंजन जो होता है 35 टू 40%, है ना, गैसोलीन इससे भी ज्यादा होता है। तो जो बाकी जो है, ठीक है, एक मैकेनिकल, सॉरी, हीट एनर्जी को यूज फुल मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं ना। लेकिन जो साइलेंसर से निकलता है बाहर को, वो यूजफुल थोड़ी है। और ट्रांसफार्मर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, लेकिन लो वोल्ट से हाई वोल्टेज, है ना। ओके। अब देखो अब कारें चली आजकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होता है वो आप अपने घर की सॉकेट के साथ लगाओ, वो चलेगा ही नहीं, वो चार्ज नहीं होगा ना। तो उसके साथ एक चार्जर आता है, जैसे आपका लैपटॉप का चार्जर होता है, उसमें लगा होता है ना, बीच में ट्रांसफार्मर लगा नहीं होता मोटा सा, Yes, sir. हाँ, वो Yes. ट्रांसफार्मर। वैसे बेटे जो कार का चार्जर होता है ना, उसमें भी ट्रांसफार्मर होता है। आपके घर में जो करंट होता है, हमारे घरों में 5 एम्पीयर होता है ना। तो जो ट्रांसफार्मर जो होगा ना, चार्जर होगा गाड़ी का, वो क्या करता है, उस 5 एम्पीयर करंट को 220 वोल्टेज के ऊपर इनपुट देता है, और 12 वोल्ट के ऊपर 25 एम्पीयर का